بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سردار زہیب ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے رن ڈاؤنس کی اگر بات کریں، آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے وزیر اعظم صاحب نے۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج حلف لے لیا، آج کی ڈیٹ میں ان سے حلف لیا ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے، جو کہ صدر پاکستان ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے چلیں، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں جناب، اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ہم ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک آڈیو ریلیز ہوئی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کیا وہ فرما رہے ہیں، اور انہوں نے چیف صاحب کا بھی نام لیا ہے اس آڈیو میں۔ اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے عطا تارڑ صاحب کی، کہ آج اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے کچھ مختلف اشارے کیے، کچھ نازیبا اشارے کیے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اور لاسٹ میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ محمود خان اجگزئی کے گھر پہ چھاپا لگایا گیا، اور انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان بھی دیا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ تو جناب، خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے عرض کرتے چلیں، ایک اپیل کرتے چلیں کہ آپ بوسٹ کریں گے تو ہم بوسٹ ہوں گے، آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، میری ویڈیوز کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے آپ کا ایک تحفہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اچھا، آج کے پہلے رن ڈاؤن کی اگر بات کریں تو وزیر اعظم صاحب نے حلف لے لیا ہے، اور جناب وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں شہباز شریف صاحب۔ آج اس تقریب میں تقریباً ملک کے چندے چندہ امپورٹنٹ جو لوگ تھے وہ سارے ہی موجود تھے، جس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے چلیں تو چیف صاحب موجود تھے، اس کے علاوہ مریم نواز بھی موجود تھیں، بلاول بھٹو بھی موجود تھے، اور تمام تقریباً دیگر تمام ہی لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، ان کی فیملیز وغیرہ بھی موجود تھیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو نہیں موجود تھے ان کی بات کریں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے، جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو نامزد ہو چکے ہیں، وہ انہوں نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی، اور جناب ان سے اگر اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فارم 45 والا وزیر اعظم نہیں ہے، اس لیے میں نہیں گیا۔ حالانکہ بعد میں جب آج لیٹلی ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، اور اس کے بعد آ کے باہر جو انہوں نے بیان دیا اس حوالے سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں اگر وزیر اعظم سے اگر مجھے ملنا پڑا اس ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے تو ملوں گا بھی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ڈفرینس سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ اس تقریب میں بڑے مختلف اشارے اور کنائیاں بھی ہم نے دیکھنے کو ملیں۔ ایک خاص بات یہ کہ بلاول بھٹو سے چیف صاحب نے ملاقات کی ہے، اور بڑی مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا، ایک اچھی بات اس کو سمجھا جائے، اور ساتھ میں ملاقات انہوں نے کی ہے مریم نواز سے، اور مریم نواز سے بھی اچھے خوشگوار جملات کا تبادلہ ہوا، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، تو اس سے بھی کافی سارے مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ تو ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا چلوں جناب کہ آج کنگ اور کنگ میکر ساتھ ساتھ ہی تھے، آپ لوگوں نے دیکھا اس تقریب میں، یقیناً آپ نے فوٹوز وغیرہ دیکھے ہوں گے۔ تو ایک چیز جو بڑی کلیئرلی سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ قابل ذکر ہے، جو چیف صاحب بذات خود اور جوائنٹ چیف صاحب بھی موجود تھے، اور جو حکومت ہے وہ یقیناً ایک پیج پہ ہے۔ تو یہ خوشائن بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر حکومت کی پشت پناہی کرے گی تو آٹومیٹکلی حکومت بوسٹ ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، اور اصل بات تو یہی ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ اور یہی ملٹری بیوروکریٹس اس حکومت کو لے کے آئیں جناب، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ عوام کے ووٹ سے وہ نہیں آئے۔ اس کا اظہار جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو وزیر اعظم صاحب ہے شہباز شریف صاحب، پہلے ان کی جو بیان تھا، یہ فارم 45 والے نہیں۔ تو بعد میں پھر یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی کہ میں ان سے ملنا چاہوں اگر تو میں مل سکوں گا، یا اس طرح سے، وہ تو وہ فارم 45 کے وزیر اعظم نہیں ہیں، اور آپ نے ان کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت نہیں کی، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا متنازع ہوئے اس حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کا میں ذکر کرتا چلوں کہ عموماً ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ شہباز شریف صاحب، جو کہ پہلے بھی پی ڈی ایم کے رہنما تھے، انہوں نے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لاسٹ ٹائم میں جو پی ڈی ایم ون کی حکومت تھی ایک پیج پہ ہی رکھا، تو یہ ان کی ایک کامیابی ہے کہ وہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنے کے گنر سے واقف ہیں، اور وہ آرام سے ان چیزوں کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اسحاق ڈار صاحب کی ایک آج آڈیو ریلیز ہوئی ہے، اور اس میں جناب وہ چیف صاحب کا نام لے رہے ہیں،
اور उनके अल्फाजात तो प्रॉपर मैं आपसे कोट नहीं कर सकता, बट कहने का मतलब ये है कि ये चीफ साहब अब ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो ये जनाब आसिम मुनीर साहब के साथ बात उनके हवाले से बात कर रहे हैं या जनरल बाजवा के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये ऑडियो कितनी पुरानी है। पर थोड़ा पुरानी ज़रूर है ये ऑडियो, इस हवाले से मैं ज़रूर आपको बताऊं, क्योंकि उन्होंने दो तीन चीज़ों का जिक्र किया है। एक तो चीफ साहब का कि वो अच्छा नहीं कर रहे, वो जो भी करेंगे इसमें उनको नुकसान होगा, और प्लस उन्होंने एक बात की कि जो मेरे साथ वो इस ऑडियो में, अगर आपने बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल है, आप सुन सकते हैं, उन्होंने एक और ख़ास बात की कि जिन लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी की या जिन लोगों ने मेरे साथ बैर किया उनका हाल भी अच्छा नहीं होगा। तो यकीनन वो दो आदमियों का उन्होंने नाम लिया है उस ऑडियो में, एक शाहिद हकान अब्बासी साहब का और मफ्ता इस्माइल साहब का। उन दोनों का हाल अच्छा नहीं हुआ, उन दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। इसी हवाले से मैंने आपसे गुजारिश की थी पिछले व्लॉग में भी कि हकान अब्बासी साहब अपनी पार्टी ला रहे हैं, और उन्होंने इस चीज़ का इजहार जो है ना इलेक्शन से पहले किया था। लेकिन एक खास बात ये है कि जब इलेक्शन से पहले एक भाग दौड़ मची हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी था, और जो मजबूत लोग थे वो टूट टूट के मुख्तलिफ जमातों में जा रहे थे, तो तब शायद हकान अब्बासी साहब ने जमात का ऐलान तो किया था लेकिन लेके नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद हकान अब्बासी साहब के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और आज उन्होंने एक बयान भी दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस हुकूमती और अवामी राय से दूर रहना चाहिए और सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये आज उनका बयान था। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस जो उनकी नशिस्तें थी वो नहीं मिल सकी, कोई हैरानगी की बात नहीं। तुम लोगों को अपना बैट का निशान नहीं मिला तो बढ़िया है, मखसूस नशिस्तें। नशिस्तें तो ये होती हैं कि आपकी अथॉरिटी होती है, आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो काफ़ी सारी जो नशिस्तें 40 से 50, अगर माफ़ कीजिएगा सही ना बता रहा हूँ मैं, तो वो नशिस्तें मेरे ख्याल से बांट ली जाएंगी या उसका आगाज़ भी कर दिया गया है कि वो बाकी जमातों में, जैसे पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, इन लोग इन जमातों में वो नशिस्तें बांट ली जाएंगी। और इस हवाले से आइन ये कहता है कि किसी तरह भी आपको आपके हक से ज़्यादा नशिस्तें नहीं मिल सकती, ये आइन कहता है। और कानून तो आइन को सामने रख के बनाया जाता है, तो अगर ऐसा कोई कानून है तो वो उसको चैलेंज कर दिया ऑलरेडी आइन ने। और फर्क मैं आपको बताता चलूं नाजरीन के, आइन की रूह से अगर आइन ने कहा है कि किसी भी जमात को जितना वो डिजर्व करती है उससे ज्यादा नशिस्तें नहीं मिल सकती, ये आइन कहता है। कानून ये कहता है कि ठीक है, किसी ने अप्लाई नहीं किया तो उसको नशिस्तें नहीं मिल सकती, ये कानून कहता है। देखो, आइन को देख के कानून को बनाया जाता है, ना कि कानून आइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो मेरे हिसाब से, और अगर लेट्स से कि उन्होंने जमा नहीं करवाई तो आप दूसरों में बांट नहीं सकते। आइन ये कहता है कि आपने वो नशिस्तें जो वो डिजर्व करते हैं, और डिजर्व का मतलब ये कि जितनी वो नशिस्तें लेके आए हुए हैं उसी परसेंटेज से उनको नशिस्तें मजीद मिल सकती हैं। तो अगर आप पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद को, क्योंकि उन्होंने अर्जी नहीं दी टाइम पे, आप अगर उन्हें नहीं दे रहे तो आप किसी और को भी नहीं दे सकते। ये है पाकिस्तान का आइन, जिसके साथ खिलवाड़ है, काफी अरसे से जारी है, आप जानते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं आपसे करता चलूं कि महमूद खान अचकजई साहब, महमूद खान अचकजई जो है ना, सदारती उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, यानी अपोजिशन की तरफ से वो सदारती उम्मीदवार हैं। और उन्होंने लास्टली एक कौमी असम्बली में एक मुतनाज़ा तकरीर कर ली। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मुतनाज़ा तकरीर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बात कर रहा हूँ और लोग बात कर रहे हैं, बात कर सकते हैं, तो जो जो सदारती उम्मीदवार है वो कैसे नहीं बात कर सकता? और अगर लेट्स से उसने कोई बात कर भी दी तो आप जनाब ये कैसे कर सकते हैं कि उसके घर छापा, कल परसों उसने एक इलेक्शन में हिस्सा लेना है, जो इलेक्शन ये तय करेगा कि मुल्क का सदर कौन होगा, और आप उसके घर पे छापा लगाते हैं, आप उसकी फैमिली को ज़द-ओ-कोब करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि पुलिस पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। चलो, मैं तो आम आदमी हूँ, हम आम आदमियों के लिए पुलिस वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पुलिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट फॉर द ऑर्डिनरी पीपल्स जस्ट लाइक मी एंड अदर पर्सन्स, वी आर स्केयर्ड ऑफ देम। बट ये वो लोग हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन्स हैं, और अदालत और असेंबली में बैठे हुए हैं, और जनाब इन्हीं के घर पे छापे चला रहे हैं। तो ये एक बात, एक सवालिया निशान है इस गवर्नेंस का, और सभी पे एक सवालिया निशान बनता है कि कौन कितना ज़्यादा महफूज है और कौन खुद को महफूज तसव्वुर करेगा इस मुल्क में। ये एक बात। और अचकजई साहब ने इस छापे के बाद एक बड़ा खास बयान दिया है, वो मैं इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखता हूँ।
उन्होंने कहा जी कि अगर ये पूरे खानदान को, अगर ये मेरे पूरे खानदान को भी फांसी चढ़ा दें, फिर भी मैं आइन की बात करने से घबराऊंगा नहीं। और बकौल आइन की वो ये बात कर रहे हैं कि जो रिग्ड इलेक्शन है, फॉर्म 45 के हिसाब से जो रिग्ड इलेक्शन है उसको चेंज किया जाए। अब आज नई एक डेवलपमेंट सामने आ रही है कि वो सारे फॉर्म 45 47 वगैरह इलेक्शन कमीशन ने डिस्प्ले कर दिए हैं अपनी साइट पे। और उन फॉर्म 45 में और जो ओरिजिनल फॉर्म 45 जो उन्होंने पहले इशू किया में जमीन और आसमान का फर्क है। किधर 500, किधर 50 को 501 बना दिया, किधर 200 को काट के 20 बना दिया, और इस तरह की हरकतें की हुई हैं और इस तरह वोट इंक्रीज। वही मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जितना ये लेट कर रहे हैं इतना ज्यादा इन्होंने चैनलाइज। लेकिन एक चीज सामने है कि जब आपने अपना ही सबूत दे दिया कि जनाब सारे फॉर्म 45 सारे पोलिंग एजेंट्स के पास मौजूद है और अब उनके उम्मीदवारों के पास मौजूद है, तो मेरे हिसाब से आपकी ये टेक्निक नहीं चलेगी। और किसी को भी उस फॉर्म 45 पे जो आपने इशू किया अपनी साइट पे उस पर यकीन नहीं होगा। यकीनन वो बड़ा तजाद का हामिल है। और अब तो ये एक ट्रेंड चल रहा है जनाब, फॉर्म 45 वाले और फॉर्म 47 वाले, यानी कि दो नंबरी वाले हैं और जो एक नंबरी वाले। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है और आप खुद ही देख लें कि आपका फॉर्म 45 कहाँ स्टैंड करता है। अच्छा, इस हवाले से एक और बात करेंगे, अता तारड़ साहब की बात करेंगे। अता तारड़ साहब जो उनसे नामजद हो गए हैं मेरे ख्याल से इत्तलात की मिनिस्ट्री के लिए। तो अता तारड़ साहब का ये है कि आज वो को मुख्तलिफ इशारे करते हुए कौमी असम्बली में देखे गए। और साथ में आपने एक वीडियो देखी होगी कि जो अपना क्या नाम है, शेर अफजल मरवत साहब, वो उनके बड़े करीब चले गए थे और एक लगता था कि एक फाइट या इस तरह का कुछ हैपनिंग हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही हजरात को मैं ये और सारे ही जो कि कौमी असम्बली में मौजूद हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, देखें हजरत, ये को हाथ से फिस्ट फाइट नहीं है, ये को फिस्ट फाइट नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपका जो अल्फाज हैं, आपका जो मजम्मत करने का तरीका है, आपकी जो बातचीत है, वो बहुत ज़्यादा ज़ोरदार लगती है। क्योंकि उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने इस तरह का किया कि मैं इंशाल्लाह इसका ख्याल रखूंगा नेक्स्ट टाइम। तो नहीं, मैं जनाब गुजारिश ये करता चलूँ कि आप बैरिस्टर हैं तो एक्ट लाइक अ बैरिस्टर। ये आपको जेब नहीं देती इस तरह की। और अता तारड़ साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, आप तो सारे ही लोग उनको जानते हैं। उनसे बस यही गुजारिश है कि अगर आपने इसी तरह जी हुजूरी करनी है और यही आपके चाल चलने हैं और ये कॉर्निश बजा लाने वाली बात है और ये जूते पॉलिश करने वाली बात है, तो काइंडली प्लीज़ आप समझ सकते हैं हम हमारी अब ये कहना भी मुनासिब नहीं है। तो प्लीज़ आप ख्याल करें, अपनी कम अज़ कम ख्याल करें आप प्लीज़। यही ताज़ा तरीन अभी तक आपके साथ जो शेयर की, और उम्मीद है कि अभी जल्दी इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखें काइंडली, और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें। आपको अगर इन तज्जियात से कोई फ़ायदा होता है तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।